السلام علیکم ریڈرس، ہوپفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سوری یہ ایپیسوڈ لیٹ آ رہی ہے، بٹ گھر پہ ایک ایونٹ تھا تو اس وجہ سے ہی لیٹ ہو گئی ہوں میں۔ پلیز ریڈ کر کے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل چکی تھی۔ پردوں کے کنارے سے دھوپ اندر جھانک رہی تھی، جیسے فجر کے بعد نیند میں ڈوبا وقت آہستہ آہستہ جاگ رہا ہو۔ حنان آنکھیں موندے، ایک بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا، اور منال پہلے سے جاگ چکی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز، اپنے موبائل پر آن لائن ڈریس ڈیزائنز دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ وقفے وقفے سے حنان کو دیکھ لیتی، جو ابھی تک خوابوں میں تھا۔ اٹھو پائلٹ صاحب، آج تمہیں گراؤنڈ پر ڈیل کرنا ہے، وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بولی۔ حنان نے ہلکی سی کراہ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ ابھی تو آیا ہوں لینڈ کر کے، اور تم نے پھر ٹیک آف کی کال دے دی۔ ہاں، کیونکہ یہ مشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ لڑکی کو پارٹی کے لیے ڈریس چاہیے۔ حنان نے سستی سے کروٹ بدلی، چہرہ اس کی طرف کیا۔ اور مجھے لگا شاید تم صرف میری تیمارداری کرنے آئی ہو۔ منال نے ہنستے ہوئے تکیا اس کے چہرے پر مارا۔ تمہاری تیمارداری تو رات کو ہو گئی تھی، اب پریکٹیکل لائف کی طرف آؤ۔ حنان نے سر اٹھایا، مسکرا کر بولا، اوکے، میڈم۔ Give me 10 minutes۔ سب اپنے اپنے کاموں کو نکل گئے تھے۔ حنان نے ناشتہ کیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی باہر پورچ میں کھڑی تھی۔ حنان نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سلیوز تھوڑی سی چڑھی ہوئی، بال ہلکے گیلے، اور چہرہ نیند سے تھوڑا سوجا ہوا، مگر آنکھوں میں وہی ہنسی، جو صرف منال کے لیے مخصوص تھی۔ منال نے گلابی لون کا سوٹ پہنا تھا، ہلکی سلور امبیلشمنٹ کے ساتھ۔ کانوں میں چھوٹے ٹاپس، اور بال کھلے۔ فریش، سمپل۔ کار انلاک، لیٹس گو۔ آج تمہارا پیشنس ٹیسٹ ہونا ہے۔ گاڑی اسلام آباد کی سافٹ بریز کو چیرتی جا رہی تھی۔ ایف ایم پر ہلکی دھن بج رہی تھی، اور منال فون پر نوٹس لے رہی تھی، کہ کون سے آؤٹ لیٹ پہلے جانا ہے۔ منال، حنان نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھتے ہوئے کہا۔ سیریس ایکسپریشن شاپنگ لسٹ۔ تو لگتا ہے جیسے کوئی کوٹ مشن پلان ہو رہا ہے۔ Because it is۔ Dress perfect party entire image collapse۔ Okay ma'am, I'm your backup pilot today۔ You lead۔ گاڑی F-7 کے ایک پوش کمرشل بلاک کے سامنے رکی۔ سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے اوپر، نیون وائٹ اور سافٹ روز گولڈ میں، نوا کا سائن چمک رہا تھا۔ بوٹیک کے شیشے کے اندر پیسٹل شیڈز اور ڈیلیکٹ ڈیکو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ منال نے باہر آ کر سانس بھرا، آخر کار۔ مجھے یقین ہے یہاں کچھ خاص ملے گا۔ حنان نے کار لاک کرتے ہوئے ہنسی دبائی۔ ویسے تم جس جذبے سے آئی ہو، لگ رہا ہے جیسے ڈریس نہیں، جنگی ہتھیار لینے جا رہی ہو۔ ایگزیکٹلی۔ منال نے آنکھوں میں شوخی لیے کہا۔ And I want to look unforgettable۔ حنان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، انفرگیٹیبل تو ویسے بھی ہو جائے، چاہے برگر کھا کے کپڑوں پہ سوس گرا لو۔ منال نے اسے کہنی ماری، اور دونوں بوٹیک کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ نوا، اندر سے منیملسٹ یٹ ایلیگنٹ تھا۔ دیواروں پر سافٹ بلش رنگ، گولڈن ہینگنگ لائٹس، اور کپڑوں کے ریک پہ لگژری فارملز سجے تھے۔ ہلکی سی ونیلا اور اود کی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑی سلم لڑکی نے فوراً منال کو پہچان لیا۔ میم منال، ویلکم۔ میم نیمل نے آپ کا مینشن کیا تھا۔ ہم نے آپ کے لیے کچھ ایکسکلوسیو پیسز الگ رکھے ہیں۔ وہ خود ابھی یہاں نہیں ہے، ایک میٹنگ کے لیے گئی ہیں۔ حنان نے حیرت سے ایک براؤ اٹھایا۔ وہ لک لائک یو اون دس ٹاؤن۔ منال نے سر اکڑاتے ہوئے کہا، میں نہ کہتی تھی، یہ نوا ہے۔ یہاں رینڈم شاپنگ نہیں ہوتی۔ Curated Dreams Address۔ Outfits try، ocean blue، rose beige، off-white organza۔ Boutique cozy couch، boutique coffee cup board، party bridal shoot۔ Changing room dress، midnight plum angraka style frock with garter and mirror work۔ حنان نے کپ نیچے رکھا، تھوڑا سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔
ऑनेस्टली, वो आहिस्ता से बोला, लाइक किसी शाम की दुआ हो जो आंखों के सामने उतर आई हो। मिनाल पल भर के लिए रुकी, चेहरे पर हल्की सुर्खी छा गई, फिर फौरा बोली, बस अब ज्यादा फ्लर्ट मत करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। हिनान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑलरेडी हो चुकी हो, आई कैन सी इट। मिनाल ने वो ड्रेस रखवा दी, इसे पक करवा दें, और नमल से कहना 10/10 टेस्ट है। हिनान ने बिलिन के दौरान सरगोशी की, नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ सॉक्स लेने आएंगे ना। सो आई सर्वाइव। मिनाल ने हंसते हुए शॉपिंग बैग पकड़ा, नो, नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारे लिए कुर्ता पजामा कस्टमाइज करवाएंगे। यू मसट लक कलासी। हिनान ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। ग्राउंड ड्यूटी ऑफिशियली स्टार्टेड। वहां से निकलकर अब वो माल का रहे थे, इसे और चीजें भी लेनी थीं। 100 वहीं बाय करनी थीं। गाड़ी पार्किंग में दाखिल हुई तो हिनान ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, बस शक्र है बुटीक मिशन कंप्लीट हुआ, अब हमें आम इंसानों की तरह मॉल जाना है। मिनाल ने सुन गिलासेस आंखों पर चढ़ाते हुए कहा, यस, now it's time for normal people things, ice cream, window shopping, maybe a little makeup, maybe shoes, maybe। बस करो, शायद पूरी दुकान खरीदने का इरादा है। हिनान ने बीच में बात काटी, शायद नहीं, यकीन है। मिनाल ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों अंदर दाखिल हुए तो मॉल यूजुअल वीकेंड की तरह लाइव था, फैमिलीज, कॉलेज किड्स, कपल्स। फिजा में परफ्यूम की खुशबू और बर्गर पॉइंट से उठती फ्राइज की खुशबू गडमड हो रही थी। हिनान ने आहिस्ता से मिनाल के कान में कहा, अगर हमें कोई पहचान ले तो मिनाल ने कंधे अचुकाए। मैरिड और बिजी कपल, प्राइवेसी डिस्टर्ब, you're so dramatic। शुश, ज़ारा मैक की तरफ देखो, नए शेड्स आए हैं। वो बाकायदा उसे घसीटती ले गई। हिनान ने हैरत से पूरे स्टोर को देखा, ये सब लिपस्टिक्स हैं। इतने कलर्स में क्या फर्क होता है? मिनाल ने एक सॉफ्ट पिंक शेड उसकी तरफ बढ़ाया, ये ब्लश न्यूड है, और ये दूसरा पकड़ा, पेटल विस्पर है, फर्क देखो। हिनान ने झुककर गौर से देखा, फिर संजीदगी से बोला, डोंट टी माइंड बट दोनों लाइट पिंक ही लग रहे हैं। मिनाल ने हंसते हुए धमका दिया, तुम्हारे जैसे बंदे को सिर्फ सफेद और काला ही डिस्टिंग्विश होता होगा ना डियर, मुझे ग्रे भी पता है, जैक का कलर होता है, मुझे ब्लू भी पता मेरी यूनिफॉर्म का कलर है, और मेरे फ्लाइंग यूनिफॉर्म का कलर ग्रीन। आई नो एच ऑफ दीम। ओके बास सूरी, मैंने आपकी एबिलिटी पर शक किया। वो बाकायदा झक्की थी। वो मुस्कुरा दिया था। काउंटर से आइसक्रीम लेते हुए हिनान ने कहा, 1 स्कूप फॉर यू, 1 फॉर मी। और अगर मेरा दिल किया तुम्हारा खाने का? मिनाल ने आंखें मुटकाते कहा। हिनान ने कोन बचाते हुए बोला, तो फिर मैं तुम्हारा खा लूंगा, बैलेंस रहना चाहिए। मिनाल ने हंसते हुए एक बाइट इसके कोन से ले ही लिया। देखा, वो बोला, प्रेडिक्शन पावर्स अभी भी एक्टिव हैं। मिनाल ने शूज के डिस्प्ले पर रुकते हुए कहा, ये ब्लैक हील्स कितनी खूबसूरत हैं, और ये बेज भी। हिनान ने एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम देखती रहो, मैं तब तक अपनी स्पिरिट रिकवर कर लूं। काफी टफ हो गए हो यूके ट्रेनिंग के बाद। मिनाल ने टीजिंग स्माइल के साथ कहा। हिनान ने इसे देखकर आंख मारी। सिर्फ बाहर से टफ हूँ, अंदर से अभी भी वही सॉफ्टी हूँ, जो तुम्हारे एक टच से मीलट हो जाए। दोनों हाथों में बैग्स, सॉफ्ट लाफ्टर, थकन के बावजूद आंखों में चमक। लिफ्ट बटन, लेट्स मेक अ डील। नेक्स्ट शॉपिंग ट्रिप, डील, बट ओनली इफ अगली बार तुम मेरे साथ फेशियल कराओगे। हिनान ने आंखें फाड़े किया। हाँ, डेटन एन एम्प, ग्लो, सो यू मैच माई वाइब। मिनाल की हंसी पूरे हॉलवे में गूंज रही थी, और हिनान सर झटकते हुए बस उसे देख रहा था। लिफ्ट की आवाज के साथ दरवाजे खले। दोनों अंदर दाखिल हुए। मिनाल हनूस हनसती हुई,
और हिनान थकी हुई मुस्कुराहट के साथ बैग्स संभालते हुए। फेशियल, सीरियसली, हिनान ने बेयकीनी से कहा, मैं आसमान में 18G टरालस झील सकता हूँ, बट फेस स्क्रब, दैट्स टॉर्चर। जब मैं कह रही हूँ तो करना पड़ेगा, मिस्टर पायलट। You've signed the marriage agreement, remember? हिनान ने हार मानने वाले अंदाज में दोनों हाथ उठाए, ठीक है। पर एक शर्त पर, मेरा थेरेपिस्ट सिर्फ तुम बनोगी। लिफट के बैक ग्लास से शहर का मंजर नजर आ रहा था, नीचे रोशनियों की झलक, और उनके बीच दो लोग जैसे एक दूसरे की दुनिया में बंद थे। लिफट की बेल बजी, दरवाजा खिला और वो निकले। पार्किंग की तरफ जाते हुए मिनाल ने आहिस्ता से पूछा, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरा साथ थका तो नहीं देता? हिनान रुक गया। थकाता नहीं, रिचार्ज करता है। तुम्हारा साथ मेरे लिए जैसे रनवेज का एंड हो, जहां मैं फाइनली लैंड कर सकता हूँ। सेफ, ग्राउंडेड, एंड होम। मिनाल पल भर को कुछ बोल ना सकी, फिर आहिस्ता से बोली, और मेरा दिल कहता है, मैं तुम्हारा हवाई जहाज ही बिन जाऊं। जहां जाओ, मैं साथ अड़ूं। हिनान ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, डील। अगली फ्लाइट में तुमको को पायलट बनाकर ही अड़ूंगा। गाड़ी बंगले के पोर्च में दाखिल हुई तो आसमान पर शाम के रंग बिखर रहे थे। सूरज ढल रहा था, और हल्की सी हवा उन थके लम्हों को भी सहारा दे रही थी। मिनाल ने बैगेज उठाए और बोली, डिनर से पहले बस 10 मिनट मुझे अपने रूम में अकेला छोड़ देना। क्यों? हिनान ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं ये हील्स उतारना चाहती हूँ, और 2 कप चाय पीना चाहती हूँ। उसकी आवाज में शोखी भी थी और एक अलग सा सुकून भी। हिनान ने मुस्कुरा कर बैगेज उसके हाथ से ले लिए। जाओ, मैं तब तक नीचे वालों से कह देता हूँ कि पायलट एंड क्वीन बोथ आर टेम्पररीली अनअवेलेबल। कुछ देर बाद जब मिनाल चाय के मग लेकर कमरे में आई, हिनान खिड़की के पास खड़ा था। बाहर शाम की हवा से पर्दे हिल रहे थे। मिनाल ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारे हाथ अब भी थोड़े गर्म हैं, क्योंकि दिल फुल लोड पे चल रहा है। हिनान ने हंसते हुए कहा। मिनाल ने एक मग उसके हाथ में थमाया, बस थोड़ा रिलैक्स करो। तुम मेरे साथ हो, सब कुछ सेफ है। हिनान ने उसकी तरफ देखा, जैसे हर जंग, हर थकन, हर खौफ खत्म हो गया हो। फिर आहिस्ता से बोला, मिनाल, अगर कल मैं फिर मिशन पर जाऊं और देर हो जाए वापसी में, तो मैं फिर से इंतजार करूंगी। उसकी आवाज में बल्ला का सुकून था। तुम्हारी वापसी का काउंटडाउन भी रखूंगी। हिनान सटक हुआ। उसने अपना मग रख कर मिनाल को सीने से लगा लिया, मुकम्मल, खामोश, गहरा सा लम्हा जैसे सांस लेने लगा हो। White medium small square white medium small square white medium small square white medium small square white medium small। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लटका हुआ मुल्क का झंडा और शुहदा की तस्वीर एक खामोश वकार की गवाही दे रहे थे। कमरे के एक कोने में बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, ऑपरेशन G-9 की फटेज। कई अफसरान अपनी करसियों पर नींद झुके, वीडियो पर नजरें गाड़े बैठे थे। यही है वो फ्लाइंग ऑफिसर हिनान, एक ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। दूसरा अफसर, उम्र में निस्बतन सीनियर, तंजिया मुस्कुराया। ये लड़का हर वक्त कोई ना कोई हीरो स्टंट करता रहता है। तीसरा ऑफिसर, जो पहली बार हिनान की फील्ड वीडियोस देख रहा था, अबरू चढ़ा कर बोला, मुझे तो लगता है ये डर्ट अटेंशन लेना चाहता है, और शायद घर में कोई नहीं, उसी लिए हर बार कोई उल्टा सीधा फैसला कर बैठता है। चौथे ने सर हिलाते हुए कहा, हर बार बाउंड्री पुश करता है। डिस्पलन का तो जैसे मजाक बनाता हो, ऐसी इंटेंसिटी, कहीं ना कहीं कमी जरूर है। उस्मान साहिब मेज के पीछे खामोश बैठे थे, चेहरे पर एक बेतासर सा सुकून, लेकिन अंदर कहीं दिल के तार बज रहे थे। इन्हें सब मालूम था, वो लड़का जिसे ये लोग शोर पसंद और अटेंशन सीकर कह रहे थे, वो उनका अपना बेटा था।
मगर उन्होंने एक लफ्ज ना कहा, ना वजाहत दी, ना दिफा किया, क्योंकि वो जानते थे अगर इस रुतबे पर बैठकर वो अपने बेटे के लिए जबान खोलेंगे तो लोगों के अल्फाज से ज्यादा इंसाफ का वजन गिर जाएगा। घर की फिजा में खुशबू थी, हंसी की, मोहब्बत की और एक बेफिक्री की। लाउंज में सब जुमा थे। हिनान सोफे पर नींद लेटा, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। इसके बराबर में वासिफ और कामिल बैठे हुए थे। टेबल पर चाय, बिस्किट और कुछ मकई के दाने रखे थे। मिनाल सामने फर्श पर तकिया रख कर बैठी थी, हाथ में एक कप थामे। हिनान हंसा, यार मैं तो बस सिचुएशन स्टेबलाइज कर रहा था। वो जो लास्ट टर्न लिया था ना, प्योर गट इंस्टिंक्ट था, वो इन्हें सिचुएशन बता रहा था। इंस्टिंक्ट नहीं, सुसाइड स्टंट था, कामिल ने हंसते हुए कहा। मिनाल ने छिपके से एक नजर हिनान की तरफ डाली, ना सिताइश थी, ना खौफ। बस खामोशी से एक अजीब फख्र सा, जैसे उसे भी पता हो, हिनान किया है। उसी लम्हे उस्मान साहब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। और फिर यकदम वो हवा जो नहीं होना चाहिए था। इन्होंने उसे बाजू से पकड़ते खड़ा किया था और रख कर थप्पड़ इसके गाल पर मारा था। कमरे में मौत सा सुकूत छा गया। चाय के कप लरस कर मेज से टकराए, मिनाल के हाथ से मग छूटते छूटते बचा। वासिफ और कामिल सदमे में जैसे मुंजमिद हो गए थे। ताई और दोनों चचिया किचन के दरवाजे पर खड़ी थीं। हिनान एक पल को साकत रहा, चेहरा सूख, आंखों में वो हैरत नहीं थी जो पहली बार पर हो, बल्कि एक गहरी चुप थी, जैसे इस थप्पड़ की बाज़गशत वो बरसों से अंदर सुन रहा हो, बस आज दुनिया के सामने सुनाई दी। ये किया, कामिल ने बमुश्किल आवाज निकाली। मिनाल जैसे सांस लेना भूल गई। इसकी आंखें नम होने से पहले ही उलझ चुकी थीं। उस्मान साहब की सांस तेज हो चुकी थी, आंखों में वो जब्त जो सालों से जमा बैठा था, अब पिघल रहा था, और लहजे में वो जहर जो दूसरों की जबान से सुना, आज अपनी जबान से टपक रहा था। तुम जानते हो आज तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा था? उनकी आवाज कांप रही थी कि तुम तवज्जो के लिए स्टंट करते हो। तुम्हारे पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक आवारा जुनून है। हिनान ने आहिस्तगी से नजरें झुकाएं, लेकिन कुछ ना कहा। चेहरे पर सुर्खी फैल चुकी थी, थप्पड़ की नहीं, अंदर के जख्म की। मैं खामोश था, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे काम से पहचान बनाने दी। ना रिश्ता बताया, ना रुतबा दिया। लेकिन शायद मैं गलत था। तुमने वो किया जो सिर्फ लावारसा करते हैं। तुम्हें खुद पे रहम नहीं आता। उस्मान साहब की आवाज गूंजी, सख्त और जख्मी। तुम जी मनफी 9 में क्या कर रहे थे? दुश्मन के आगे तन तन्हा जा खड़े हुए। तुम्हें लगता है तुम अकेले पूरे स्क्वाड्रन से बड़े हो। हिनान चुप रहा, आंखें झटकी हुई। अपनी हालत देखी है। वो मजीद आगे बढ़े और अचानक हिनान की शर्ट का कॉलर झटके से खींच वो मजीद आगे बढ़े और अचानक हिनान की शर्ट का कॉलर झटके से खींचा। शर्ट थोड़ी सरक गई और बाजू के पीछे मौजूद ताजा पिटी और नेलों के निशान सामने आ गए। मिनाल का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। ये क्या है? ये जख्मी जिस्म, यही तुम्हारी फतह है। उस्मान साहब की आवाज कांपने लगी थी, मगर वो अब भी गुस्से के पर्दे में बोल रहे थे। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो। उनके अल्फाज गले में अटक गए। हिनान की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे अंदर कहीं से निकली हो जाता तो शायद मैं यूं आज कटहरे में ना खड़ा होता। ये जुमला लाउंज की फिजा में जैसे ठहर गया। दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां भी जैसे रुक गई हूं। किसी ने कोई आवाज ना निकाली। उस्मान साहब के चेहरे पर सख्ती और बेबसी का इम्तिजाज था। उनकी मुट्ठी अब भी बंद थी, जैसे वो खुद को संभालने की आखिरी कोशिश में हूं। मिनाल धीरे धीरे आगे बढ़ी। इसका दिल लरज रहा था, आंखें भीग चुकी थी, मगर आवाज में एतमाद था, वकार था। ये जो जख्म आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ जिस्म के नहीं हैं, उनमें बरसों की चुप
और अंदर के वार भी छपे हैं। हिनान ने आहिस्ता से नजरें उठाईं। मिनाल अब इसके और उस्मान साहब के दरमियान खड़ी हो चुकी थी, जैसे दीवार, जैसे ढाल। उस्मान साहब की आंखों में नमी उभरी। पलकें भीगी थी मगर उन्होंने फौरन पलटकर नजरें चरा लें। कामिल ने चाय का कप मेज पर रखा और गहरी सांस ली। आपने गलत किया चाचो। मैं ये कभी ना कहता मगर आज आपने गलत किया। वासिफ ने नजरें उस्मान साहब से हटाते हुए आहिस्ता से कहा, चाचो, ये जो आपका फख्र है ना, ये पहले से ही बहुत कुछ झील चुका है। ताई अम्मा आहिस्ता से किचन से बाहर आईं, उनके चेहरे पर तशवीश थी। चची और छोटी चची खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। इस घर के सब खामोश तमाशाई अब बेचैन हो चुके थे। हिनान ने आहिस्ता से मिनाल की तरफ देखा, जो उसके सामने खड़ी थी, थोड़ी सी कांपती हुई, मगर अपनी बात पे कायम। चलो हिनान, उसने धीरे से कहा, चलो, हम चले यहाँ से। हिनान ने नजरें नीची की, और उस लम्हे इसकी आंख से एक आंसू बेसाख्ता गाल पर ढलक गया। उस्मान साहब ने वो आंसू देखा, और उनके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। रुक जाओ। उनकी आवाज बहुत मध्यम थी, लेकिन उसमें बरसों का थकन भरा हुआ था। हिनान ने पलटकर बाप की तरफ देखा। वो उस्मान साहब, जो हमेशा फौलाद जैसे दिखे, आज शीशे जैसे नाजुक लग रहे थे। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। उनकी आवाज भीग गई, पर शायद तुम्हें अपना मानकर मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। कमरे में खामोशी थी, मगर अब वो खामोशी दर्द भरी नहीं थी, बल्कि नरमी लिए हुए थी। हिनान आहिस्ता से आगे बढ़ा। दोनों मर्द आमने सामने खड़े थे। फिर उस्मान साहब ने हाथ बढ़ाया, और हिनान ने बिना हिचकिचाए वो हाथ थाम लिया। जैसे सांस वापस लौट आया हो। कुछ पल खामोशी में गुजरे। फिर उस्मान साहब ने हिनान का हाथ थामे थोड़ा सा दबाया, जैसे बरसों की थकन से कह रहे हों, चलो मेरे साथ। हिनान ने एक नजर मिनाल पर डाली, जो अब भी भीगी आंखों से उसे देख रही थी, और धीरे से सर हिला दिया। दोनों आहिस्ता कदमों से लाउंज से निकले। पीछे सारी महफिल खामोश हो गई। कोई कुछ ना बोला, जैसे सबने इस लम्हे को उन दोनों के नाम कर दिया हो। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ जर्द मध्यम रोशनी थी। दीवार पर पुरानी तस्वीर, एक रैक पर कुछ तमगे, और एक छोटा सा कुरान पाक। उस्मान साहब आहिस्तगी से कुर्सी पर बैठे। हिनान सामने सोफे पर बैठ गया, कंधे जरा झुके हुए, जैसे थकन अब हड्डियों में बोल रही हो। कमरे में सिर्फ घड़ी की टक टक गूंज रही थी। फिर उस्मान साहब ने नजरें झुकाए, बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें वो नहीं दिया, जो एक बाप को देना चाहिए था। हिनान चुप रहा। शायद वो कुछ सुनना चाहता था। शायद परसों से, जब तुम पैदा हुए, तुम्हारी माँ, वो चली गई। उनकी आवाज में लर्जिश आ गई, और मेरे अंदर एक खला बन गया, जो मैंने ड्यूटी से, कौम से, रैंक से भरने की कोशिश की। तुमसे नहीं। हिनान ने सर झुकाए। खामोशी से सुना। मैं तुम्हें देखता रहा, एक बच्चा जो दिन ब दिन मजबूत हो रहा था, मगर तन्हा, और मैं बस देखता रहा। उनकी आवाज रुक गई। वो आंखें बंद करके कुछ पल चुप रहे। मैंने अपने दुखों को तुम्हारी तरबियत समझ लिया, और तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी ताकत। हिनान की पलकें लर्जे। उसने सर उठाया। आंखों में वो चुप, जो सिर्फ बेटे की होती है। बाबा। उसकी आवाज में नमी थी, थकन थी, पर शिकवा नहीं था। कभी दिल किया, बस आप एक बार कहें, कि मैं काफी हूँ, कि आपको मुझ पर फख्र है। ये जुमला उस्मान साहब के दिल पर बिजली बनकर गिरा। वो आहिस्ता से उठे, हिनान के करीब आए और इसके सामने बैठ गए। मुझे तुम पर फख्र है, हिनान, उस दिन से जब तुमने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी थी। उस दिन से जब तुमने पहली बार जहाज उड़ाया। और आज, जब तुमने सब कुछ सहा कर भी मेरी तरफ देखना बंद नहीं किया। हिनान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस्मान साहब ने इसका चेहरा दोनों हाथों में लिया, और बरसों में पहली बार माथे पर बोसा दिया। मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ये मेरा सबसे बड़ा फख्र है। हिनान ने आंखें बंद कर लीं। वो लम्हा जैसे सारी जिंदगी की थकन का मरहम बन गया हो। फिर उस्मान साहब ने अपने बराबर वाली दराज से वो वीडियो फाइल निकाली, जो कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही थी।
ऑपरेशन G-9 की। हिनान ने हैरानी से वो फाइल देखी, फिर बाप की तरफ। तुम्हें लगता है मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा? मैं हर लम्हा तुम्हें जांचता रहा हूँ, मगर शायद अब वक्त है कि तुम्हें सुनूं, समझूं और अपना बेटा मानूं, सिर्फ कौम का सिपाही नहीं। हिनान ने नम आंखों से मुस्कुरा कर सर हिलाया। वो कुछ ना बोला, मगर इसकी आंखों में सुकून आ चुका था। आप मुझे इस कमरे में भी थप्पड़ मार सकते थे, सबके सामने मारने की क्या जरूरत थी? सूरी मेरा बच्चा। उस्मान साहब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, वो गले जिसका पर्स बरसों पुराना था।